Hello dear students, today we will discuss worksheet number 43 class 10th science periodic classification of elements. Matter around us is present in the form of element, compounds and mixtures. Elements are substance containing atom of only one type, example sodium, magnesium, orium, etc. And compounds may be made up of two or more elements, and mixture is the mixture of two or three or any kind of elements or compounds. They can be separated. Mixture को अलग किया जा सकता है आसानी से. There are 118 elements known to us. All these have different properties. Out of these 100, only 98 are naturally occurring. नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड सो दैट दे कुड बी स्टडीड ईजिली and in an organized manner. The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then known elements as metals and non-metals. Later further classifications were tried out as our knowledge of elements and their properties increase. शुरुआत में इनको मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई कर दिया गया. उसके बाद एलिमेंट्स बढ़ते गए तो आसानी से उनकी स्टडी हम कर सकें, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी. और टाइम टू टाइम मैनी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का. डॉबेराइनर ट्रायड्स. सबसे पहले डॉबेराइनर ने कोशिश की. इन द ईयर 1817 डॉबेराइनर अ जर्मन केमिस्ट ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स. व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, groups of three elements known as triads having similar chemical properties were obtained. The atomic mass of the middle element of the triad was roughly the average of the atomic mass of the other two elements. आप देख सकते हैं डॉबेराइनर के ट्रायड्स हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. For example, take the triad consisting of lithium, sodium and potassium with the respective atomic mass 6.9, 23 and 39. The average of the atomic mass of lithium and potassium is 22.95, which is roughly equal to the atomic mass of sodium. इसी तरीके से कैल्शियम और बेरियम का हम एवरेज निकाल लेंगे मास का, तो स्ट्रोंशियम के आसपास होगा. और क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास निकाल लेंगे का एवरेज, तो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल होगा. ये डॉबेराइनर के ट्रायड थे. Limitation: Dobereiner could identify only three triads from the elements known at the time. Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. अब टोटल 3 ही triads निकाले हैं 9 एलिमेंट्स के, तो एलिमेंट्स तो उस समय भी काफ़ी थे, तो दैट वाज नॉट यूजफुल. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड arranged the then known elements in order of increasing atomic masses and found that the properties of every eighth element is similar to that of the first element. He compared this to the octaves found in music and called it the law of octaves. For example, the properties of lithium and sodium were found to be the same. आप देख सकते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव से हर 8वां एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होता है. ठीक है, यानी हर 8th एलिमेंट रिपीट करता अपनी प्रॉपर्टीज़ को. लिमिटेशन क्या थी? इट वॉज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन one slot and that too in the column of unlike elements having very different properties. Let us practice some questions. Question number 1 है, what was the need of classification? So elements were classified so that they could be studied easily and in an organized manner. Write down 3 elements that show Dobereiner triads. तो आप इसमें से कोई सा भी एक ट्रायड्स लिख सकते हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमने ले लिया है, जिनके एटॉमिक मास भी गिवन है. लिथियम का 6.9, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39. क्वेश्चन 3 है, न्यूलैंड डिवाइडेड
एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। तो ये ट्रू और फॉल्स आपको बताना, ये फॉल्स है क्योंकि 7 एलिमेंट्स हैं ईच हॉरिजॉन्टल रो में। फोर्थ है क्वेश्चन, राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आप इसमें से 2 लिख सकते हैं। It was applicable up to calcium for lighter elements only. Properties of new discovered elements did not fit into the law of octaves. Can following groups of elements be classified as Dobereiner triad, sodium, silicon, chlorine and barium, magnesium, calcium? तो हम इसको सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मास को ऐड करके इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो 29 आ रहा है, सिलिकॉन का 28 है, तो ये रफली आसपास ही है, यानी जो एवरेज है वो रफली आसपास है। और इधर हम बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में देख लेते हैं। तो बेरियम का 9 और कैल्शियम का 40 हमने ले लिया है, तो ये मैग्नीशियम के आसपास है, देखो 24.5 है, उधर सिलिकॉन के आसपास है वो 29 है। फर्स्ट ग्रुप एटॉमिक मास को तो फुलफ़िल कर रहा है, बट सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है, तो इसलिए हम उसको डोबेराइनर के ट्रायड में नहीं रख सकते। और सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को, इनकी प्रॉपर्टी भी मिलती जुलती है और ये काफ़ी नज़दीक है, यानी बेरिलियम और कैल्शियम का जो एवरेज है वो मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के बिल्कुल आसपास है, इसलिए इसको हम ट्रायड में, डोबेराइनर के ट्रायड में रख सकते हैं।